مووی کے فرسٹ سین میں 1720 کے ایرا میں پورٹ رائل کی طرف سیل کرتی شپ دکھائی جاتی ہے، جس میں گورنر کی بیٹی ایلزابتھ کھڑی پائریٹس کے بارے میں گانا گا رہی ہے کہ کریو ممبر گبز اسے منع کرتا ہے، اور وہیں لیوٹیننٹ جیمز نورنگٹن بھی نظر آتا ہے۔ ایلزابتھ ابھی ینگ ہے، اس لیے اس کی پائریٹ سے فیسینیشن کو کوئی سیریس نہیں لیتا، اور تب ہی اس کو سی میں ایک لڑکا نظر آتا ہے جس کے بارے میں بتانے پر اسے شپ پر لایا جاتا ہے۔ ان کا شپ آگے بڑھتا ہے تو کچھ ایسی شپس دکھتی ہیں جن کو آگ لگی ہوتی ہے۔ ایلزابتھ کو گورنر لڑکے کے پاس چھوڑتے ہیں تو وہ ایک دم سے ہوش میں آئے دوبارہ بے ہوش ہوتے لڑکے کا نام جان لیتی ہے، جو کہ ول ٹرنر ہے۔ ایلزابتھ اس کے گلے میں لٹکا گولڈن میڈالین دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ وہ پائریٹ ہے، اور وہ اس کا میڈالین اتار کر چھپا لیتی ہے۔ اسے دیکھتے ہوئے ایلزابتھ کو دور سی میں کوئی شپ نظر آتی ہے، اور ایک دم سینز پاسٹ سے پریزنٹ پر آ جاتے ہیں۔ ان سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلزابتھ بڑی ہو گئی ہے، اور جاگنے پر اس نے ڈرار سے گولڈن میڈالین نکال کر پہنا ہے۔ اسی وقت اس کے فادر روم میں آتے ہیں اور اسے لیوٹیننٹ جیمز کے ایز کوموڈور پروموٹ ہونے کی سیریمنی کے لیے ڈریس دیتے ہیں، جس کو پہننے کے لیے ایلزابتھ کو نیچے ٹائٹ کورسٹ پہنایا گیا ہے۔ گورنر ایلزابتھ کو چھوڑ کر نیچے جاتے ہیں، جہاں انہیں ول ملنے آتا ہے، جو اب بلیک سمتھ ہے، اور وہ جیمز کے لیے نیو سورڈ دیتا ہے۔ ساتھ ہی ایلزابتھ تیار ہو کر وہاں آتی ہے تو ہم ان کے بیچ میں کنیکشن فیل کر سکتے ہیں۔ بہرحال ایلزابتھ اور گورنر دونوں کیریج میں بیٹھے سیریمنی میں پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری طرف پورٹ رائل پر پائریٹس کا کیپٹن جیک سپیرو آتا ہے، اور وہ پورٹ پر گھومتا ہوا رائل شپ پر جانے لگتا ہے، لیکن وہاں موجود 2 گارڈز اسے منع کرتے ہیں، جس پر وہ بلیک پرل نامی شپ، جس کی کرولٹی کے بارے میں بہت سی سٹوریز فیمس ہے، اس کی باتوں میں انہیں لگا کر خود شپ میں بیٹھ جاتا ہے۔ گارڈز اس کے پیچھے آتے ہیں، جہاں وہ انہیں شپ چرانے کا اپنا پلان بتاتا ہے، لیکن وہ یقین نہیں کرتے، اور وہ وہیں بیٹھا انہیں سٹوری سنانے لگ جاتا ہے۔ کوموڈور جیمز ایلزابتھ کو پروپوز کرتے ہیں، لیکن ایلزابتھ کورسٹ ٹائٹ ہونے کی وجہ سے سانس بند ہونے پر بے ہوش ہو کر سی میں گر جاتی ہے، جہاں گولڈن میڈالین کا پانی سے ٹچ ہونے سے میجیکل افیکٹ ہوتا ہے، اور ایلزابتھ کو جیک بھی دیکھ لیتا ہے اور بچا کر شپ پر لاتا ہے۔ وہ اس کا کورسٹ کاٹتا ہے تو ایلزابتھ ہوش میں آ جاتی ہے۔ تب ہی گورنر اور جیمز سولجرز کو لیے ادھر پہنچ جاتے ہیں، اور جیمز جیک کے ہاتھ پر نشان دیکھ کر اسے پہچان لیتا ہے اور اسے ہینڈ کف کیے جیل میں ڈالنے کا کہتا ہے، لیکن جیک ہینڈ کفز کی چین ایلزابتھ کے گلے پر رکھ کر اپنی ساری چیزیں لیتا ہے، اور پھر ایلزابتھ کو دور پھینک کر ولیج کی طرف بھاگتا ہے۔ جیمز سولجرز کو اس کی طرف بھیجتا ہے تو جیک بلیک سمتھ کی ورک شاپ میں چھپ جاتا ہے، اور وہیں وہ ہینڈ کفز کی چینز توڑتا ہے، مگر ہاتھ ابھی کفز میں ہوتے ہیں کہ وہ اس کو اگنور کر کے ویپنز جمع کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں ادھر ول آ جاتا ہے اور دونوں میں زبردست لڑائی ہوتی ہے۔ ول بچپن سے پائریٹس کو ہی ناپسند کرتا ہے، اور وہ جیک کو بھی ان جیسا ہی کروئل سمجھتا ہے، اس لیے اسے ہر حال میں جانے سے روکتا ہے، اور جب جیک بچ کر جانے ہی لگتا ہے تب ہی ول کا ڈرنک باس جو سویا ہوا تھا جیک کو بوٹل مار کر بے ہوش کرتا ہے۔ جیمز اور سولجرز وہاں آ کر جیک کو اٹھائے جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ نیکسٹ سین میں رات کے ٹائم بلیک پرل شپ پورٹ رائل پر آتی ہے، اور اس میں موجود پائریٹس ولیج میں آ کر تباہی مچا دیتے ہیں۔ وہ کسی بھی دیکھنے والے کو زندہ نہیں چھوڑتے، اور ول بھی انہیں دیکھ ان سے لڑنے باہر آتا ہے۔ پائریٹس کی شپ سے کینن سے بامبنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، جسے جیل کی ونڈو سے دیکھ کر جیک سمجھ جاتا ہے کہ یہ بلیک پرل ہے۔ کچھ پائریٹس ایلزابتھ کے گھر آتے ہیں، جہاں ایلزابتھ کی میڈ کو لگتا ہے کہ اسے گورنر کی بیٹی ہونے پر کڈنیپ کیا جا رہا ہوگا، اور ایلزابتھ پریشان ہوتی پائریٹ سے بھاگتی ہوئی ڈائننگ روم میں جا کر چھپتی ہے، جہاں وہ سورڈز نکالنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ سٹک ہوتی ہیں۔ ایلزابتھ ادھر ہی چھپی ہوتی ہے جب پائریٹس اندر آ کر اسے ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر وہ ان کے مارنے سے پہلے پائریٹس کا کیپٹن کے پاس لے جانے کا کوڈ بتاتی ہے، اور وہ اسے لے جا رہے ہوتے ہیں کہ ول یہ دیکھ کر اسے بچانے آتا ہے، لیکن پائریٹس اسے بے ہوش کر دیتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیک کے ساتھ والی جیل کی وال بامبنگ سے ٹوٹ گئی ہے، جس
जिस पर प्रिजनर्स भाग गए हैं और सिर्फ जैक अकेला जेल में बंद है। जब वहाँ 2 पायरेट्स आते हैं जिनको जैक के टॉन्ट करने पर हमें पता चलता है कि उन दोनों ने जैक को बिट्रे किया था। साथ ही मून निकलने की वजह से उनके फेसेस को छोड़ के उनकी पूरी बॉडी स्केलेटन होती है। उधर शिप पर हम देखते हैं कि एलिजाबेथ शिप पर आने पर कैप्टन बारबोसा से नेगोशिएशन करने की कोशिश करती है और जब वो इनकार कर रहा होता है तो एलिजाबेथ उनके लिए मेडालियन की इम्पोर्टेंस जानते हुए उसे पानी में गिराने की धमकी देती है और अपना नाम एलिजाबेथ टर्नर बताती है। सब टर्नर नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं और बारबोसा उसे डील करता है कि वो मेडालियन उसे दे देगी तो वो लोग विलेज छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ मेडालियन देती है वैसे ही वो डील से बैक आउट कर जाता है और एलिजाबेथ को बांधकर अटैक कंटिन्यू रखने का कहता है। सुबह होने पर पायरेट्स चले जाते हैं और विलेज में हम देखते हैं कि विल की आंख खुलती है तो वो गवर्नर और जेम्स के पास एलिजाबेथ की किडनैपिंग की बात करने जाता है। वो दोनों ऑलरेडी ये बात जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उसे कहाँ ले जाया गया होगा, जिस पर पास खड़े गार्ड्स बताते हैं कि जैक को ब्लैक पर्ल के बारे में इंफॉर्मेशन है और जब विल उन्हें जैक के साथ मिलकर ब्लैक पर्ल को ढूंढने का सजेशन देता है तो जेम्स विल को इंसल्ट करके वहाँ से भेज देता है। विल गुस्से में जैक के पास जाता है और उससे हेल्प मांगता है, जिस पर जैक उसका नाम पूछता है और जानने पर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और विल को ब्लैक पर्ल के आइलैंड पर होने और उसकी लोकेशन का बताता है। विल उसकी हेल्प के लिए जेल के बार्स तोड़कर उसे बाहर निकाल लेता है और जैक उसे पोर्ट रॉयल पर लेकर जाता है, जहां वो एक शिप चोरी करते हैं और उससे सेलर्स को निकालकर वापस पोर्ट की तरफ भेजते हैं, जिन्हें देखकर जेम्स शिप में सोल्जर्स लिए उनकी तरफ आता है। लेकिन जब वो जैक की चोरी की शिप में उसे ढूंढने जाते हैं तो जैक विल को लेकर उनकी शिप में चला जाता है और शिप दूर ले जाता है, जिस पर वो उस पर फायरिंग भी नहीं करवा सकते। सफर के दौरान विल के पूछने पर जैक बताता है कि वो विल के फादर टर्नर को जानता है और वो भी पायरेट थे, जिस पर विल को गुस्सा आता है तो जैक उसे पानी में फेंकने की धमकी दिए चुप रहकर एलिजाबेथ को वापस लाने का कहता है। वो दोनों शिप में सफर करते टोर्टुगा पहुंचते हैं, जहां जैक अपने दोस्त गिब्स से मिलता है और उनके बार में होते हुए उसे विल को एज लेवरेज ब्लैक पर्ल हासिल करने की ख्वाहिश बताता है, जिसे विल भी सुन लेता है, मगर वो ये नहीं सुनता कि वो टर्नर का बेटा होने की वजह से कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ पायरेट्स के शिप में एक रूम में बंद है। जब उसे बारबोसा डिनर के लिए बुलाता है तो उधर बातों ही बातों में स्टोरी सुनाता है कि कोर्टेस को ट्रेजर भेजा गया था जिसमें 882 गोल्ड पीसेस थे, जिसे एलिजाबेथ पायरेट मेडालियन समझती है वो उसी ट्रेजर का पीस है और ये पीसेस कोर्टेस को कर्स्ड थे कि जो भी इनमें से एक भी पीस लेगा वो कर्स होगा, लेकिन उन्होंने इस स्टोरी पर यकीन नहीं किया था और ट्रेजर ढूंढकर उसके सारे पीसेस खर्च कर दिए थे, जिससे उन पर इमोर्टैलिटी कर्स हो गई थी। कर्स खत्म करने के लिए उन्होंने 10 साल लगाकर सारे पीसेस जमा किए हैं और एलिजाबेथ के पास मौजूद पीस लास्ट है। मजीद ये कि वो टर्नर के ब्लड से कर्ज खत्म कर सकते हैं और एलिजाबेथ टर्नर के नाम से वो उसे टर्नर की बेटी समझकर उसके खून के सेक्रीफाइस से ही कर्ज खत्म करेंगे। ये सुनकर एलिजाबेथ गुस्से में आती वहाँ मौजूद नाइफ उठाकर बारबोसा के सीने में घुसाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिजाबेथ रूम से भागती बाहर आती है तो देखती है कि सारे पायरेट्स स्केलेटन्स बने हुए हैं, जिसके बारे में बारबोसा बताता है कि यही कर्स है कि वो सब मूनलाइट में आते ही स्केलेटन्स बन जाते हैं। एलिजाबेथ उनसे डरती हुई भागती एक रूम में छुप जाती है, जिसका डोर बारबोसा बंद कर देता है। सीन्स जैक पर शिफ्ट होते हैं, जहां जैक गिब्स और विल के साथ सेलर्स को देख रहा है जो उसके साथ ब्लैक पर्ल की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सब ही किसी न किसी तरह डिसेबल हैं, सिवाय एक औरत के, जिसकी डिमांड पर जैक और विल सेलर्स को साथ देने के बदले शिप देने का प्रॉमिस करते हैं। वो सब शिप पर होते हैं तो रास्ते में स्टॉर्म आ जाता है, जिससे बचते हुए वो निकल आते हैं और उधर गिब्स विल को बताता है कि जैक असल में ब्लैक पर्ल का कैप्टन था, लेकिन एक मेंबर बारबोसा ने उसे सबकी इक्वालिटी के लिए ट्रेजर की लोकेशन बताने का कहा और जब जैक ने लोकेशन बता दी तो उन्होंने रात को ही जैक को एक आइलैंड पर अकेले फेंक दिया, साथ ही उसे पिस्टल में सिर्फ एक ही बुलेट दी, जिसे जैक ने अभी तक यूज नहीं किया क्योंकि
क्योंकि वो ये बुलेट उस पायरेट बरबोसा पर यूज करना चाहता है। उनकी बातों के दौरान जैक उन्हें आइलैंड पर पहुंचने का बताता है और बोट पर विल के साथ एलिजाबेथ को बचाने जाता है। साथ ही वो गिब्स को पायरेट्स के कोड के मुताबिक वापस न आने पर उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने का कहता है। उधर हम देखते हैं कि बरबोसा के पायरेट्स कर्ज खत्म करने के लिए एलिजाबेथ को साथ लिए कोर्टेज के ट्रेजर के पास आते हैं, जहाँ जैक और विल भी दूर से उन्हें देख रहे होते हैं और जैक एलिजाबेथ को बचाने जाने लगता है तो विल उसे मारकर बेहोश कर देता है। उधर ही बरबोसा आखिरी पीस और एलिजाबेथ का ब्लड ट्रेजर में फेंकता है तो कुछ भी नहीं होता और वो एक पायरेट को गोली मारकर चेक भी करता है कि कर्ज नहीं खत्म हुआ, जिस पर बरबोसा गुस्से में आखिरी पीस हाथ में पकड़ी एलिजाबेथ को हिट किए पीछे गिरा देता है, क्योंकि एलिजाबेथ में टर्नर का ब्लड नहीं है और पायरेट्स में ट्रस्ट खत्म होने की वजह से लड़ाई होने लग जाती है, जबकि एलिजाबेथ को विल बचाकर अपनी शिप इंटरसेप्टर पर ले आता है। पायरेट्स की एलिजाबेथ को मारने की विश पर बरबोसा मुड़कर देखता है तो एलिजाबेथ और मेडालियन गायब होता है, जिस पर वो सारी जगह सर्च करते हैं और उसी दौरान उन्हें जैक मिल जाता है, जिसे वो मारने लगते हैं तो वो उन्हें टर्नर के बेटे का नाम बताने की डील करता है। इंटरसेप्टर में पहुंचकर एलिजाबेथ मेडालियन विल को दे देती है। उधर ही पायरेट्स ब्लैक पर्ल में सफर करते दिखाई देते हैं और शिप में जैक बरबोसा से नेगोशिएशन कर रहा होता है कि उन्हें इंटरसेप्टर के करीब जाते जाने का बताया जाता है। बरबोसा शिप को जल्दी इंटरसेप्टर तक पहुंचाने के ऑर्डर्स देता है और जब जैक उससे डील करके रोकने की कोशिश करता है तो उसे ब्रिग में डाल दिया जाता है, जबकि ब्लैक पर्ल के करीब आने का पता चलने पर इंटरसेप्टर में डिस्टर्बेंस हो जाती है और एलिजाबेथ वहां आकर डिफरेंट तरीकों से शिप दूर ले जाने का बताती रहती है। जब वो सारे प्लान्स फेल होते हैं तो एलिजाबेथ उन्हें शिप मोड़कर एलिमेंट ऑफ सरप्राइज यूज करने का कहती है। साथ ही विल कैनन से कटलरी शूट करने के ऑर्डर्स देता है। जब दोनों शिप्स करीब आती हैं, तब ही एलिजाबेथ को मेडालियन याद आता है, जिसे लेने विल शिप के अंडर चैम्बर्स में जाता है और तब ही दोनों शिप्स से एक दूसरे की तरफ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। इंटरसेप्टर के अंदर पानी आने की वजह से विल उधर ही फंस जाता है। ऊपर जैक का क्रू और पायरेट्स लड़ रहे होते हैं कि जैक भी ब्रिग का दरवाजा टूटने की वजह से बाहर आता इंटरसेप्टर पर आ जाता है और वहाँ वो एलिजाबेथ के साथ पायरेट से लड़ रहा होता है कि उसे मेडालियन बरबोसा के मंकी के हाथ में दिखता है, जो मंकी बरबोसा के पास ले जाता है। तभी बॉम्बिंग की वजह से शिप खराब हो जाती है और बरबोसा जैक, उसके क्रू और एलिजाबेथ को ब्लैक पर्ल पर लाता है और उनके सामने इंटरसेप्टर को तबाह कर देता है, लेकिन उसमें से बचा हुआ विल ब्लैक पर्ल पर आता है। वो अपना नाम बताकर डील करता है कि वो उसके ब्लड के बदले क्रू को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और एलिजाबेथ को छोड़ देंगे। बरबोसा उसके साथ डील करता है, लेकिन डील में मौजूद लूप होल्स को यूज में लाकर वो एलिजाबेथ और जैक को एक आइलैंड में छोड़ देता है और विल को क्रू के साथ ब्रिग में बंद कर देता है। जैक और एलिजाबेथ स्विम करते आइलैंड पहुंचते हैं तो एलिजाबेथ जैक को पिछली दफा की तरह एस्केप करने का कहती है, लेकिन पिछली दफा वहाँ कुछ लोग थे जिनके जरिए वो वहाँ से एस्केप कर सका था और इस दफा वहाँ कोई नहीं है। वो दोनों जैक की ढूंढी अल्कोहल पीकर एंजॉय करते हैं और फिर सो जाते हैं। सुबह होने पर जैक देखता है कि एलिजाबेथ जेम्स और गवर्नर की आर्मी के हाथों रेस्क्यू किए जाने की होप में उनके सर्वाइवल का सारा सामान जला रही है और उसे भी हेल्प आने का वेट करने का कह रही है, जिस पर जैक वहाँ से दूर जाने लगता है कि उसे जेम्स की शिप डॉन्टलेस दिखती है। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि डॉन्टलेस पर एलिजाबेथ जेम्स और गवर्नर को विल को बचाने का कह रही है, लेकिन वो दोनों उसका इनकार कर रहे हैं, जिस पर एलिजाबेथ शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करती उसे एज वेडिंग गिफ्ट विल को बचाने का कहती है, जिस पर जेम्स मानता हुआ जैक की हेल्प लेने का कहता है। दूसरी तरफ ब्रिग में बंद विल सफाई करते पायरेट से अपने फादर के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताते हैं कि उनका जैक को दिया धोखा टर्नर को पसंद नहीं था, इसलिए उसने विल को अपना पीस दे के भेज दिया था। ये सोचकर के पायरेट्स कर्स होना डिजर्व करते हैं और इसी वजह से उन्होंने उसे मार दिया था। उनके स्टोरी सुनाते हुए बरबोसा वहाँ आकर विल को बाहर निकलवाता है और सबको लेकर एक बार फिर कोर्टेज के ट्रेजर के पास जाता है। केव्स के बाहर कमोडोर जैक और सोल्जर्स के साथ आता है। जब जैक उसे कन्विंस करता है कि वो उसे अकेला बरबोसा से बात करने जाने दे और जब वो पायरेट्स को लेकर बाहर आए तब वो अपनी आर्मी से अटैक करवाकर पायरेट्स को खत्म कर दे। साथ ही वो एलिजाबेथ को
सेव करने का कहता है, जिस पर जेम्स एलिजाबेथ को रूम में बंद कर देता है। जैक जेम्स की बोट लेकर आइलैंड जाता है जहाँ बारबोसा विल को सेक्रीफाइस करने वाला होता है और जैक उसे बाहर आर्मी के होने का बताकर कहता है कि पायरेट्स उन पर अटैक करके आर्मी को खत्म करके डॉन्टलेस ले सकते हैं। फिर उनके पास 2 शिप्स होंगी जिनमें से ब्लैक पर्ल का कैप्टन वो जैक को बना दे तो जैक उसे कमाडोर बना देगा। बारबोसा उसकी बात मानता तो है लेकिन उन्हें बोट्स पर बाहर भेजने के बजाय ऐसे ही जाने का कहता है और वो जब बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि पायरेट्स स्केलेटन बने पानी से होते डॉन्टलेस की तरफ जा रहे हैं, जबकि 2 पायरेट्स को उन्होंने लेडीज क्लॉथ्स पहनाकर डिस्ट्रैक्शन के लिए रखा है और खुद वो डॉन्टलेस पर पहुंचकर छुपते हुए सोल्जर्स को मारने लग गए हैं। उधर ही एलिजाबेथ अपने रूम की विंडो से भागकर बोट में बैठी ब्लैक पर्ल आ जाती है और उसके पीछे से बोट में आते पायरेट्स का डिस्गाइज पता चलने पर वहाँ फाइट स्टार्ट हो गई है। डॉन्टलेस पर डिसफिगर पायरेट्स के आने पर एक सोल्जर बेल बजाए जेम्स को अलर्ट करता है और तभी डॉन्टलेस से उन पर बॉम्बिंग शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ ब्लैक पर्ल में मौजूद पायरेट से बचते हुए ब्रिग्स के पास पहुंचती है और उसने जैक के क्रू को आजाद करा लिया है। सीन्स वापस जैक पर शिफ्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि जैक ने फिर साइड्स बदल ली हैं और पायरेट से स्वॉर्ड लेकर बारबोसा से लड़ने लग गया है, जबकि विल भी पायरेट से स्वॉर्ड छीनकर उसी से लड़ रहा है। लड़ाई के दौरान बारबोसा के जैक को स्टैब करने पर पता चलता है कि जैक के वहां आने पर एक गोल्ड पीस उठाने की वजह से वो भी कर्स्ड हुआ इमोर्टल बन चुका है और इस सीन में जब जब वो मूनलाइट में आता है तब वो स्केलेटन बनता है। उधर एलिजाबेथ जैक के क्रू को हेल्प के लिए साथ चलने का कहती है तो वो सब इनकार करते हैं, जिस पर वो अकेली विल और जैक के पास आती है और विल के साथ मिलकर बारबोसा के 3 पायरेट्स के मुकाबले पर लड़ती है। बोट पर सवार जेम्स के सोल्जर डॉन्टलेस पर मौजूद पायरेट्स के पास आ जाते हैं जो कि ब्लैक पर्ल को जैक के क्रू के हाथों चोरी होता देख रहे हैं। केव में विल, एलिजाबेथ और जैक इंटेंस लड़ाई लड़ रहे हैं और विल और एलिजाबेथ मिलकर पायरेट्स के अंदर बॉम्ब डालकर उन्हें ब्लास्ट कर देते हैं। फिर वो और जैक करीब आते हैं जो आखिरी पीस को अपना खून लगाता बाकी ट्रेजर की तरफ फेंकने लगता है कि बारबोसा पकड़ लेता है। जैक उसे शूट करता है तो बारबोसा अपने आप को इमोर्टल समझते हुए जैक के मूव को फजूल समझता है, लेकिन उसके पीछे विल अपना खून ट्रेजर पर डालकर कर्ज खत्म कर चुका होता है, जिसकी वजह से बारबोसा मर जाता है। उधर पायरेट्स को अपने मॉर्टल होने का पता चलता है तो वो सरेंडर कर देते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सब वापस विलेज आ गए हैं जहाँ जैक को पायरेसी पर हैंग किया जा रहा है और तब ही विल गवर्नर और जेम्स के सामने एलिजाबेथ के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता जैक को बचाने जाता है। वो सॉर्ड लिए उसे हैंग होने से रोकता है तो दोनों वहाँ मौजूद रोप यूज किए सोल्जर्स को गिराते जाते हैं, लेकिन फिर वो गिर जाते हैं, जिस पर एलिजाबेथ विल के साथ खड़ी हो जाती है। उधर ही जैक को अपने क्रू के एक मेंबर का पैरेट दिखता है जिस पर वो विल और एलिजाबेथ के पास से बातें करता हुआ एज पर आता नीचे गिर जाता है और दूर से ब्लैक पर्ल आती दिखाई दे रही है। जेम्स सोच में पड़ा हुआ एलिजाबेथ और विल को अपनी ब्लेसिंग्स देता है और जैक और उसके क्रू को एक दिन का हेड स्टार्ट देकर चेज करने का कहता चला जाता है। कैमरा जैक पर शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि वो अपने क्रू के पास पहुंच गया है और उनका कैप्टन बनने पर वो खुश होता हुआ उन्हें शिप आगे बढ़ाने का कहता है।